Hello students, today we will discuss new topic of basic computer engineering, lecture number 46, and yesterday we have discussed the database system, database management system and architecture of the DBMS system along with the data dictionary. Today we will discuss our data models. Please just see this. In the database management system, there are the multiple data models like network data model, hierarchical data model, relational data model, entity relationship data model, entity attribute values, and object-oriented data models. That all comes inside the database management system, and topic is the data model. And we will learn here what is the data model, and we will learn here what is the data model and types of the data model. There are the lots of type of the data models like hierarchical data model, network data model, relational data model, entity relational data model, relationship data model, object-oriented data model, and documented data model, entity attribute data model, star schema, and all highlighted with the yellow color data model we will discuss in this lecture. There are the figure I have described with the help of figure all types of data model. First we will learn what is the data model. A data model is a way of finding the tools for both business and IT professional, which is used to set of symbols and text to the precisely explain a subset of real information to improve communication within the organization and thereby lead to a more flexible and stable application environment. Okay, और तो यहाँ पर मैं डेटा मॉडल आपको समझाना चाहूँगा. व्हाट इज द डेटा मॉडल. एग्जैक्टली डेटा मॉडल क्या होता है कि किस जो हमारे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका कि उसको किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको. तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स बताए गए हैं जहाँ पर हम डेटा को अलग अलग फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, हायरार्किकल फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को. ये हम आपस में रिलेशनशिप बता सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और एंटिटी के बीच में. ठीक है, ये होता है डेटा मॉडल. तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इट इज सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा गैदरिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है और अलग अलग डेटा मॉडल के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे डिस्क्राइब करेंगे. पहला है डेटा मॉडल हायरार्किकल डेटा मॉडल. प्लीज सी दिस. हायरार्किकल डेटा मॉडल को यहाँ पर किसने सबसे पहले डेवलप किया था? IBM कंपनी ने डेवलप किया था इसको. और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है हायरार्किकल डेटा मॉडल का, कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहा कि यदि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ, RGPB यूनिवर्सिटी है, और ये जो रहता है हायरार्किकल फॉर्म में रहता है. यदि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस पढ़े होंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़े होंगे, तो और हायरार्किकल, तो उसमें आपने यही ऐसा ही फिगर देखा होगा कि RGPB यूनिवर्सिटी और इससे जो डिफरेंट कॉलेजेस एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे हमने बोल दिया SISTec है, LNCT है, डिफरेंट कॉलेजेस आर एसोसिएटेड विद द सेम यूनिवर्सिटी RGPB. And we can say this is the parent and this is the child. And SISTec also has the different branch. SISTec, Gandhi, Nagar, SISTec E and SISTec R. And SISTec, if we are taking for the example of the SISTec, then SISTec has the multiple departments, and next hierarchy will be the department has CSE department, electronics department, and mechanical department. So this show the hierarchy of the hierarchical data model. Okay, and similarly SISTec has the account section. There are the multiple departments inside the any colleges. LNCT also has the different branches and different departments can be elaborated, and they also governing the branch computer science, electronics, mechanical, civil, etc.
Then this is the hierarchy, top to bottom hierarchy. This is called the hierarchical data model and representation of the graph using a tree way in the form of tree. Next one is a network data model. Network data model is almost similar to the hierarchical data model, but the child node can be connected with each other in the network data model. Network data model, like here, it replaces the hierarchical tree with a graph. वहाँ पर हमने हायरार्किकल डेटा मॉडल में देखा था कि एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर भी ट्री के फॉर्म में है, बट इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि यहाँ पर ये चाइल्ड जैसे नोड है। तो यहाँ पर एक, यदि मैं हायरार्की की बात करूँ कि कॉलेज हैज अ डिपार्टमेंट एंड कॉलेज हैज अ लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट्स इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो एक्सेस द फैसिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी. दिस इज द कॉल्ड नेटवर्क डेटा मॉडल. This model is easy to design and understand. It represents the data as records type and one-to-many relationship. Yes, it is obviously represents the one-to-many relationship. Next data model is a relational data model. This is the most important data model of the database management system because it is used in a real world in the form of table. Relational data model is based on first order predict logic. This model is first proposed by EF Code. EF Code has decided the approx 12 to 13 rules for DBMS system, and every organization of the world are using the 1 to 7 proposed system of the EFJ codes. It represents data as relations और टेबल. यहाँ पर हमने जो रिलेशंस और टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है. यदि हम रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ते हैं तो टेबल को रिलेशन बोला जाता है. यदि हम ER मॉडल पे आगे जैसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यदि ER मॉडल पे पढ़ते हैं तो हम उसको एंटिटी बोलते हैं टेबल को ही. ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है. तो यहाँ पर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि रिलेशनल डेटा मॉडल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. इट इज द इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. यहाँ पर मैं एक टेबल का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ. टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं. और यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 3 कॉलम है, कस्टमर ID, कस्टमर नेम और स्टेटस. कोई एक कस्टमर है, उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, तो उनकी कस्टमर ID बन जाएगी कोई भी. और यहाँ पर 1 2 3 कस्टमर ID रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर इसको बताया गया प्राइमरी की ऑलवेज बी अ यूनिक. किसी भी कंपनी किसी भी कस्टमर की ID सेम नहीं हो सकती. जैसे मैं अगर स्टूडेंट का एग्जांपल ले, ओके, स्टूडेंट एक रिलेशन और डेटाबेस है, तो स्टूडेंट रोल नंबर होगा, उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की ब्रांच होगी. एक ही क्लास में एक नाम के स्टूडेंट, जैसे दीपक की बात करता हूँ तो दीपक बहुत सारे एक ही क्लास में हो सकते हैं, बट जितने भी दीपक नाम के स्टूडेंट्स होंगे सभी का रोल नंबर अलग होगा. उनकी ब्रांच भी सेम हो सकती है बट इनरोलमेंट नंबर अलग होगा. तो जो इनरोलमेंट नंबर अलग होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी की इज समथिंग यूनिक. यूनिकली रिप्रेजेंटेशन और के लिए यूज की जाती है प्राइमरी की. एंड द कॉलम शुड बी ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल. सभी जितने भी वैल्यूज रहेंगी कभी एम्प्टी नहीं हो सकती, बट और सभी वैल्यू यूनिक भी रहेंगी. यहाँ पर ये दूसरा, तो यहाँ पर बताया गया कि 3 कॉलम्स हैं. यहाँ पर 3 कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. एट्रीब्यूट और फील्ड ये भी बोलते हैं कॉलम्स को कि 3 कॉलम है. और जो रो है, रो को तो रो बोलेंगे ही कि एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो. रो को हम टपल्स भी बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में. और यदि मैं इसकी बात करता हूँ कि नंबर ऑफ रो, जो रो की काउंटिंग होगी उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी. की इस जो टेबल है और रिलेशन है इसकी कार्डिनलिटी यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताइए कि 3, क्योंकि इसमें जो रो का काउंट है 1 2 3 रो है इसमें, इसलिए. और यदि डिग्री कोई पूछता है तो डिग्री होता है कॉलम का काउंट, कि नंबर ऑफ कॉलम्स उस टेबल में कितने हैं. तो देयर आर द 3 टेबल्स
एंड काउंट ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पर डोमेन की बात किया गया। डोमेन मतलब होल इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। कि ये जैसे कस्टमर नेम कॉलम है तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द कस्टमर नेम। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसमें क्या होता है देखिएगा कि सबसे पहले ये डेवलप किसने किया, इट वाज डेवलप्ड बाय चेन इन 1976। ठीक है, काफ़ी यूजफुल है ये डेटा मॉडल और काफ़ी यूज होता है जब आप इन फ्यूचर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ER मॉडल का आप पढ़ेंगे, आप SRS बनाएंगे जब ये सॉफ्टवेयर आप जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जैसे हमने बताया है कि इसमें क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिलेशनशिप। एंटिटी क्या बोलते हैं कि एंटिटी एक रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उसको एंटिटी बोलते हैं। जैसे कोई इंसान है, कोई स्टूडेंट है, वो एक एंटिटी हो गया क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। और एंटिटीज हम बोल सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, SISTec कॉलेज है, वो भी एक एंटिटी है, यूनिवर्सिटी है, एंटिटी है। कोई मोबाइल है, वो एंटिटी हो सकती है। तो एंटिटी कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन कैन बी अ एंटिटी। व्हाट इज द एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। कि सपोज मैंने बोला कि स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का ब्रांच, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का क्लास, सेमेस्टर, परसेंटेज, all are interrelated to the students and that all are the attributes of the student entity। अब जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप की हमने बोला कि रिलेशनशिप क्या होता है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज। ये यहाँ पर यदि मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट तो एक पर्सन है ना, स्टूडेंट ही क्यों बोलते हैं उसको, स्टूडेंट मतलब वो किसी न किसी कॉलेज या स्कूल में स्टडी कर रहा है, इसलिए हम उसको स्टूडेंट बोलते हैं। तो जैसे मैं इसको और जनरलाइज फॉर्म में ले जाता हूँ कि पर्सन है जा स्टूडेंट, पर्सन है जा कस्टमर और पर्सन है जा एम्प्लॉय। एक पर्सन कुछ भी हो सकता है, तो स्टूडेंट बोलेंगे तो मतलब वो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा है। तो यदि मैं बोलता हूँ वो किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा है तो कॉलेज भी एक एंटिटी हुई। कॉलेज की अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगी, कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कॉलेज का कोड, यूनिक कोड होता है, कॉलेज का नेम होता है, कॉलेज का एड्रेस होता है, कॉलेज का फ़ोन नंबर होता है। ये सभी कॉलेज जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट हो गए और स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट। अब दोनों में आपस में रिलेशन क्या, तो रिलेशन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश और टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटी सेट। दिस इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, तो कितने टाइप में एंटिटी रिलेशनशिप कितने टाइप में हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1 एंड many to many। इतने टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स फिगर हैं, नोटेशन है जो एंटिटी रिलेशनशिप में यूज होते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल शेप है, इससे एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए डायमंड शेप यूज करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे उनके लिए हम लोग एलिप्स यूज करते हैं। यहाँ पर डबल इनसाइड जैसे है कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, वीक एंटिटी के लिए, वीक रिलेशनशिप के लिए ये है। और यहाँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट बहुत टाइप में होते हैं, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, बेस एट्रीब्यूट हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग हो गए। ये की एट्रीब्यूट के लिए होता है, ठीक है। और ये कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे आपका नेम, जो नेम रहता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि जो नेम रहता है आपका वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, 3 एट्रीब्यूट से मिलाकर बना होता है आपका नेम। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द मोर देन 1 एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसी तरह हम एड्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि एड्रेस क्या हो गया, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गई, कॉलोनी का नेम हो गया,
आपका सिटी हो गई, पिन कोड हो गया, इन सभी को मिला के कंप्लीट एड्रेस बनता है। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट के उदाहरण हो गए। यदि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करता हूँ कि एक पर्सन है कोई, वो 2 मोबाइल रखता है, ठीक है, उसके पर्सनल एक मोबाइल है, एक ऑफिशियल मोबाइल है और एक पर्सनल मोबाइल है। तो वन पर्सन हैज अ 2 मल्टीपल वैल्यू ऑफ द कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर। वन पर्सन हैज द 2 ईमेल आईडी, हो सकती है एक पर्सन की 2 ईमेल आईडी हो सकती हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है वो, ठीक है। और इसी तरह की एट्रीब्यूट हमने आपको जैसा बताया कि जो यूनिक रहता है आपके रिलेशन में, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, ये सभी की एट्रीब्यूट के उदाहरण कहलाए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे बेस एट्रीब्यूट होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो बेस एट्रीब्यूट को इसी टाइप सिंबल से डिनोट किया जाता है और डिराइव्ड को डॉटेड एलिप्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। बेस और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट भी बता देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन की, जैसे मैं एक क्लास में पूछता हूँ कि सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपकी एज कितनी है, वो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि फर्स्ट ईयर के होंगे तो 19 और 20 ईयर होगी। तो 19 और 20 ईयर तो होगी सभी की एज, वो ऑब्वियस सी बात है। क्या मैंने किसी का पूछा कि एज, अगर मुझे किसी की 20 साल पता है कि 20 ईयर का है, तो क्या मैं उससे डेट ऑफ बर्थ उसकी फाइंड कर सकता हूँ? कभी पॉसिबल ही नहीं हो, क्योंकि जो मार्च में जिसकी बर्थ हुआ होगा वो भी 20 ईयर बताएगा, जो अप्रैल में हुआ होगा जिसका बर्थ वो भी 20 ईयर बताएगा, जो जुलाई में हुआ होगा वो भी 20 ईयर बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी की मुझे एज पता है तो मैं उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता हूँ। यदि मैं इसके अपोजिट पूछता हूँ कि यदि मैंने पूछ लिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, एक बंदे ने बोल दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, दूसरे ने बोल दिया मेरी ये है, यदि मैंने डेट ऑफ बर्थ किसी की पूछ लिया तो मैं उससे उसकी एज, बिल्कुल एग्जैक्ट एज बता सकता हूँ। मतलब वी कैन फाइंड द एज विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ विल बी अ बेस एट्रीब्यूट एंड जो उसकी एज होगी वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगी। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ से ऊपर साइड जो टॉप में दिया गया है, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट एंड बुक्स। Student is a entity and book is a entity. There are the 2 entity and student has the property roll number. रोल नंबर को देखिए आप अंडरलाइन से ये बताया गया इलिप्स में। यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, फोन नंबर, वन स्टूडेंट है जो मल्टीपल फोन नंबर, मल्टीपल मोबाइल नंबर, देन दिस इज डिनोटेड बाय द डबल इलिप्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय द प्राइमरी की। Address is a composite attribute. Address is the city, pin number, state, and date of birth is this, and this is the age. So this is the age is denoted. Age जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है डॉटेड के थ्रू, ठीक है। जो मैंने पिछली क्लास उसमें बताया था कि डॉटेड के थ्रू एज होनी चाहिए। मैंने डेट ऑफ बर्थ को इस टाइप में डिनोट किया कि इफ वी हैज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एनी स्टूडेंट देन वी कैन डिराइव द एज, बट हम एज से डेट ऑफ बर्थ नहीं फाइंड कर सकते। तो ये मेरा हो गया बेस एट्रीब्यूट, ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब दूसरा एंटिटी है बुक्स। बुक्स में बताया गया कि बुक्स का नेम हो गया, बुक्स का ISBN नंबर हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब स्टूडेंट और बुक का आपस में रिलेशन क्या है, तो रिलेशनशिप हम कैसे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट बुक को क्यों रेफर करेगा, रीड करने के पर्पज से, और तो कोई कारण नहीं होगा उसका कि भाई किस पर्पज से करेगा, देखने के पर्पज से तो नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर रीड, स्टूडेंट रीड्स द बुक, बुक्स रीड्स बाय द स्टूडेंट, देन दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशन। मीन्स स्टार्टिंग में जैसे बताया गया कि एंटिटी रिलेशनशिप टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 एंटिटी सेट, दिस इज कॉल्ड द ER मॉडल। दूसरा एग्जाम्पल में बताया गया है टीचर और डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी 2 एंटिटी बताई गई हैं, टीचर है एक और एक डिपार्टमेंट। टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, यदि डिपार्टमेंट होगा तो टीचर होगा, और डिपार्टमेंट यदि टीचर है तो डिपार्टमेंट चलेगा। दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और डिपेंडेंट है। टीचर की अपनी प्रॉपर्टी होगी, टीचर का नाम होगा, टीचर का ID होगा, टीचर की सैलरी होगी, टीचर का एज होगा, टीचर का मोबाइल नंबर। तो ये क्या कहला गया, उसके प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जिनको बोलते हैं, और ये हो गया उस एंटिटी।
दूसरा हो गया डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का आईडी हो गया, डिपार्टमेंट का नेम, जैसे हम बोल दिया डिपार्टमेंट का आईडी CS और डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो टीचर वर्क्स फॉर, टीचर कहाँ वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, भले ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज का पार्ट हो, बट कोई ना कोई डिपार्टमेंट से तो बिलोंग करते हैं टीचर, ठीक है, एम्प्लॉई। तो टीचर वर्क्स फॉर, तो दिस इज द रिलेशनशिप एंड दिस इज द एट्रीब्यूट। लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्पज से, जनरली यूज किया जाता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी कोड लिखने हमें, जैसे रियल लाइफ में कुछ कोड होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज काफ़ी हो रहा है, मशीन लर्निंग का यूज काफ़ी हो रहा है, इमेज प्रोसेसिंग यूज हो रही है। तो इस टाइप के जो रियल लाइफ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम हैं, जहाँ पर हमें हाई स्पीड, हाई प्रोसेसिंग और क्लासेस के फॉर्म में हमें डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, डेटा उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ता है, तो इस टाइप के जो डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर जैसे बताएंगे, एन ऑब्जेक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, मोर और लेस एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस और एन एंटिटी इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल जो बताया गया, एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एग्जांपल कैसे ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं रियल लाइफ में। एक ऐप का ही एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, क्लास का यूज करते हैं, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अलग अलग टाइप में हमने इनहेरिटेंस का यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज से। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल के में हम लोग इसको समझा सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल, ये एक वेबसाइट से लिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स इन DBMS। तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कैसे बनाया गया है कि यहाँ पर एक सपोज की इन्वेंट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, या फिर इनवॉइस जनरेट हो रही है इनवॉइस। तो यहाँ पर कैसे बताया गया कि कस्टमर है, कस्टमर बिलोंग्स टू इनवॉइस, इनवॉइस हैज ऑर्डर डिटेल। कोई भी यदि इनवॉइस है, यदि हम कहीं से रसीद लेते हैं, इनवॉइस कोटेशन लेते हैं, तो उसमें उसकी डिटेल रहती है, ऑर्डर डिटेल्स रहती हैं। यहाँ पर वो किसके लिए जनरेट की जाती हैं, कस्टमर के लिए, कस्टमर के थ्रू जनरेट की जाती हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सिस्टम बनता है। इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर जो हमारा रहेगा कि यदि मैं एक क्लास बोल दूं कि क्लास है इनवॉइस, इनवॉइस में ऑर्डर डिटेल कोई एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम अगर बोलते हैं कि डेटा मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो डेटा मेंबर कैन बी अ कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी, कैन बी अ डेटा मेंबर एंड ऑर्डर डिटेल्स कैन बी अ मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास, एंड और इसके थ्रू इनवॉइस जनरेट की जाती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स इन DBMS। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेटा मॉडल्स। एंड रेफरेंसेस मैंने कहाँ कहाँ पर लिए थे इस PPT को बनाने के लिए। तो फर्स्ट रेफरेंस है ये freeinsta.com, ठीक है। दूसरा रेफरेंस था जो हमने इमेजेस कुछ यूज किया, जो फर्स्ट इमेज थी वो मेरी खुद की डेवलप की हुई थी, और अदर इमेजेस मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, एग्जाम्पल्स डाउनलोड किया। तीसरा मैंने ट्यूटोरियल राइट से भी कुछ कंटेंट आपको समझाने के लिए लिया हुआ इस PPT में। एक और वेबसाइट है आफ्टर एकेडमी, इससे भी कुछ कंटेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिया, जैसे नेटवर्क डेटा मॉडल पे जो मैंने फिगर डिस्क्राइब किया था वो यहाँ से लिया गया फिगर था। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा डेटाबेस लैंग्वेजेस, और उसको डिटेल में मैं प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊँगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल के थ्रू आप ज़्यादा समझेंगे उसको।